Record. अस्सलाम वालेकुम आप सबको, अस्सलामुन अलैकुम आप सबको। एंड उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंड विलादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक, शाबान मुबारक। These are the days and nights of नूर्स, माशाल्लाह इतनी ब्यूटीफुल विलादतें हमारे इतने सारे अइम्मा मासूमीन की birthdays हैं इस month में. So I wish you, I congratulate all of you. अपनी दुआओं में एक दूसरे को याद रखें एंड हम लोगों को भी याद रखें. एंड आई होप कि आप लोगों ने खूब मजे से टिकियां खाई हों एंड खीर. एंड रजब वाज अमेजिंग. आई एम सॉरी कि हमारा बड़ा ब्रेक हो गया. कुछ मेरी मसरूफियात थी. कुछ times the days were such that we couldn't have our session, but we're back. And आज हम लोग शुरू करेंगे. Oh no, पहले हम लोग दुआ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम. Actually Ziva Haji is a little bit busy, so I'm doing that part as well. तो हम लोग इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की दुआ से शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा कुन लिवलियकल हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साआ व फी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद. And especially आज का session, on behalf of all of us, I would like to dedicate it to none other than Imam Zainul Abidin alayhi salam as his birthday gift from all of us. अच्छा, आज हम लोग आयत नंबर हम लोगों ने this is Surah Ahzab session 7. और हम लोगों ने last time we completed till ayat number 12. आज हम लोग शुरू करते हैं from ayat 13, 14, 15 onwards. ठीक है, तो first I will read these 3 ayats and then inshallah we will jump right in. ठीक है. Bismillahirrahmanirrahim. And when a party of them said, O you the people of Yathrib, Yathrib ya Yathrib ye log kehte hain, O you the people of Yathrib, there is no place for you to stand here, so go back. And a group of them asked permission of the prophet, saying, Verily our houses are exposed. And they were not exposed. They only intended to flee away from the battlefield. तो ये आयत number 13 essentially is talking about कि कुछ group आए. Remember we're talking about the battle of Ahzab. तो ये अब हम आयतें जो discuss कर रहे हैं ये उस time की हैं कि अभी army जो दुश्मन की थी, जो Ahzab के जो army थी, वो अभी पहुंची नहीं थी. Okay, so these people are busy digging the trench around and preparing for the war. अभी लड़ाई की तैयारियां मुसलमान जो हैं under the instructions of Rasulullah, they are starting that. ठीक है, वो लोग कोई खंदक खोद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. तो ये उस टाइम की आयतें हैं. तो उस वक्त मतलब आयत नंबर 13 में कहते हैं कि there is a group of people who came and they started to make excuses and they tried to कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि मैं हमारे ये रीजन है, हम इस वजह से लड़ाई में आपके साथ शामिल नहीं हो सकते. आयत नंबर 14 जो है, मतलब मैं पहले छोटा सा बताती हूँ, then we'll discuss this. आयत 14, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. And if an entry had been made upon them from all sides of the city, then they had been asked to apostatize, to renounce a religion, they would certainly have done it. And they would have done so with only a mild hesitation. Ayat 15, and indeed they had made a covenant with Allah before that they would not turn their backs to the enemy, and covenants with Allah are accountable. तो देखिए, सबसे पहले ये जो सिटी ऑफ यथरिब अब आप लोग के दिमाग में आए, या एटलीस्ट बड़ों के तो नहीं लेकिन छोटों के आता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट मदीना. Where is this place called Yathrib? So, well, Medina ka, before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam started to reside in Medina after Hijrah, Medina ka naam hua karta tha Yathrib.
यसरिब हम लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं यथरिब, ठीक है। तो इसके आयतुल्ला सैयद मुर्तजा, लेट सैयद मुर्तजा जो थे, उन्होंने तो एक्चुअली मदीने के 11 नाम बताए थे। Medina was a city with many names, and amongst them a few that I can share with you. जैसे it used to be called Tayyaba, it used to be called Tabah, and Sakina, Mehbooba, and Marhuma, and Qasima. तो बहुत से इसके नाम होते थे, but Yasrib या Yathrib used to be the name of Medina before Islam, before the people of Medina accepted Islam, before Rasulullah. ठीक है। तो जो हिपोक्रेट्स थे, वो कोई भी, ये जो मुनाफिक होते थे, ये कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देते थे जहां पे ये किसी तरीके से लोगों को उस वक्त का रिमाइंड कराएं कि देखो पहले कैसा था, देखो हम लोग पहले कितने मजे से रहते थे, हमारे ऊपर ये पाबंदियां नहीं थी, हमारे ऊपर ये सब चीजें नहीं थी। सो दे वुड कॉल इट यथरिब, ताकि लोगों के मेमोरी में रिफ्रेश करते रहते थे, कोशिश करते थे, रिमेम्बर व्हाट वी यूज्ड टू कॉल इट, ये मदीना अदीना क्या है, ठीक है। सो ये लोग जो थे, ये उन लोगों को बोल रहे थे जो कि एक्चुअली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त कि ओके, ऑल हैंड्स ऑन द डेक, जिसे नहीं कहते, जैसे सोचिए कि एक तूफान आ रहा है ना, शिप डूबने वाली है, लोगों को लग रहा है, तो सबसे नहीं कहा जाता कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। तो यू नीड एवरीबडी आउट देयर डूइंग समथिंग, ताकि ये कश्ती आपकी डूबे नहीं, है ना। और फिर ऐसे माहौल में आप सोचिए कि ऐसे लोग हों जो कि खुद नहीं करें काम, दूसरे लोगों को रोक रहे हैं, दूसरे लोगों को मॉरलाइज कर रहे हैं। तो ये जो मुनाफिक लोग थे, ये दूसरे लोगों के पास जो सपोर्ट करते थे, उनसे कहते थे जाओ जाओ वापस जाओ, क्या कर रहे हो, देयर इज नो वे कि तुम ये वॉर जीत पाओगे, तो यू गो बैक एंड अपनी बीवी और अपने बच्चों के बारे में सोचो, सोचो कि क्या तुम चाहते हो। तुम तो, ये तो 100% मुस्लिम्स आर गोइंग टू लूज दिस वॉर, एंड तुम जो हो, तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे जो हैं, दे विल बी टेकन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, तुम ये चाहते हो अपनी फैमिली के लिए। इस तरीके से ये लोग डिमोरलाइज करते थे, ये डर और खौफ का एक माहौल बना रहे थे, ठीक है। शेख हिली जो है बड़े इंटरेस्टिंग, देखिए जैसे मैंने आपसे इस, आई थिंक इस पूरे सूरह में मैं ये चीज बार बार आप लोगों के सामने रिपीट कर रही हूँ, वो ये कि this is a beautiful surah to do an MRI for us. Literally ये हमारे सोल की MRI हमसे करवाता है, ताकि हमें हम अपने आप को धोखा ना दें। जैसे मैंने लास्ट वाले सेशन में डिस्कस किया था कि वी डोंट इवन नो कि हमारे रूह की हाल क्या है, हमारी जो रूह है, इज इट अ हेल्दी सोल, एम आई सिक। तो ये जो सिम्टम्स अल्लाह डिस्क्राइब कर रहा है आपकी पर्सनालिटी में, आपकी सोच में, कि इज दिस व्हाट यू थिंक व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस, देन दिस इज द रीजन। इज दिस, तो फिर आप चेक करें कि ओके, आई नीड टू वर्क हार्डर बिकॉज माई सोल इज कमजोर, वीक है बेचारा, उसको विटामिन सी की जरूरत है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो रही है ना। तो वो साइंस, this surah is amongst the most beautiful surahs for us to be able to learn and then check within ourselves. इसलिए ये surah is very very important, तो शेख हिली जो है वो ये कहते हैं कि देखिए 3 किस्म के लोग होते हैं किसी भी जगह, 3। एक वो लोग होते हैं who actually do things, एक वो लोग होते हैं जो नहीं करते काम, और एक वो लोग होते हैं जो कि खुद भी नहीं करते और दूसरे लोगों को अच्छे काम, या कोई भी जो आप काम करने जा रहे थे, आपका पैर पकड़ के खींच के आपको गिरा देंगे। 3 किस्म के लोग होते हैं। यू आर नॉट डूइंग इट, ओके, बट एटलीस्ट आप दूसरे लोगों को जो आप नहीं कर पा रहे, you can support somebody else, नहीं, आप उसका भी पैर खींच के उसको भी गिरा देंगे, because I can't run, so I'm not gonna let you run, है ना। तो यहाँ पे वो लोग जो कि रसूलुल्लाह की कोई हेल्प नहीं कर रहे, रसूलुल्लाह के, मतलब कि योर सिटी इज एसेंशियली अंडर अटैक एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बल्कि जो लोग जा रहे हैं उसको सिक्योर करने के लिए यू आर पुलिंग देम डाउन, आप उनको डिस्करेज कर रहे हैं, आप उनके अंदर खौफ पैदा कर रहे हैं। तो ये कौन लोग थे? ये हिपोक्रेट्स थे, ये मुनाफिक जो थे, ऐसे लोगों को ढूंढते थे। दे वुड टॉक टू दोज पीपल जिनका वैसे ही ईमान बहुत कमजोर था,
तो सोचिए कि ये वो मुसलमान को तो नहीं कर पाते थे भाई, जिसका ईमान स्ट्रांग था उसको ये कुछ नहीं कर पाते थे, दैट पर्सन वाज इम्यून टू व्हाट दे वर सेइंग। लेकिन जो लोग जिनका ईमान कमजोर था, हम लोग थ्रू आउट द सूरा हम लोग बात करेंगे कि ईमान की कमजोरी क्यों आती है। हिपोक्रेसी अगर आप देखना चाहते हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता हम लोग मुनाफिक तो नहीं है, है ना, तो उसके साइंस क्या होते हैं, हाउ डू यू कम टू नो, तो ये सब चीजें थ्रू आउट द सूरा वी विल इंशाल्लाह बी डिस्कसिंग। तो यहाँ पे ये लोग क्या कहने लगे कि वन ऑफ द एक्सक्यूजेस दैट दीज पीपल गेव कि तुम कैसे, हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस, यू नो, कि तुम तो क्यों जा रहे हो, ये तो सुइसाइड मिशन है, इसमें कोई तरीके से कोई जीतेगा नहीं। तो एक एक्सक्यूज मुनाफिकों ने देना शुरू किया दूसरे लोगों को, और रसूल अल्लाह के सामने अपने आप जाके कहते थे कि या रसूल अल्लाह, ये जो गतफान, remember this, there were Quraysh who were coming, there were the Jews जो कि निकाल दिए गए थे मदीना, उन्होंने ग्रुप अप करके वो आ रहे थे, और तीसरा जो ग्रुप, मेजर ग्रुप जो आ रहा था फाइट करने का, वो था गतफान के ट्राइब्स। गतफान के बहुत से ट्राइब्स थे, so a lot of tribes scattered all over and they all came under this name called गतफान, ठीक है। तो वो कहते थे वो जो गतफान वाले आएंगे ना, तो हमारा घर उस तरफ है जहां से गतफान हमको अटैक करेगा, सो आवर हाउसेस आर वेरी वल्नरेबल एंड हेंस हमें जाके अपने घरों में अपनी बीवी और अपने बच्चों को डिफेंड करना। ये उनका एक्सक्यूज था। तो उस वक्त जो है, हालांकि that was not the case, the Ghatfan were not coming, जिस तरफ ये जो मुनाफिक, the people who were coming कि we have to defend our house, उनके घर उस डायरेक्शन में भी नहीं थे, they were totally in a different direction। तो उस वक्त जब इस तरीके से लोग आ रहे थे making these lame excuses to be excused from the war, तो साद इब्ने माद ये कौन थे, ये थे अंसारों के चीफ, जो मदीना के जो ओरिजिनल रहने वाले थे, देर कॉल्ड अंसार्स, राइट। उनके जो हेड थे, उनके जो चीफ थे, उनका नाम था साद इब्न माद। और वो रसूलुल्लाह के पास जब जाते हैं, वो ये देखते हैं कि लोग आए जा रहे हैं, उल्टे सीधे एक्सक्यूजेस कह रहे हैं कि प्लीज एक्सक्यूज अस फ्रॉम द वॉर, तो ये कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, आई नो दीज पीपल, ये यहीं के रहने वाले हैं, और जब भी हमारे ऊपर, इवन बिफोर इस्लाम, हमारे ऊपर जब भी कोई परेशानी आती थी, when our tribes had to take a stand or when we were under attack, these were the same people who made such lame excuses and they just ran away। ये कभी भी हम लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, they never supported us। या रसूलुल्लाह, don't accept their excuses, ठीक है। लेकिन हाँ, तो ये उन्हीं के हेड ने बोला कि ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये ऐसे एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, दे ऑलवेज हैव बीन मेकिंग दीज एक्सक्यूजेस, दे आर लायर्स, ठीक है। देखिए, अगर हम अपने अंदर झांके, अब देखिए हमारा टाइम आ गया ना, हम लोग, ये स्टोरी बताएगी हमको, नाउ वी हैव टू लुक इनसाइड आवरसेल्व्स। कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि शैतान हम लोगों को एक एक्सक्यूज देता है, एंड हम लोगों को वो डाउट्स में डालता है व्हेन इट कम्स टू आवर वाजिबात। क्यों तुम ये कर रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत हार्ड है, मे बी देयर इज अ वे आउट, मे बी यू डोंट नीड टू डू इट दिस वे, अगर तुम नहीं करोगे अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, वो तो माफ ही कर देगा। गिव्स अस एक्सक्यूजेस टू नॉट डू आवर वाजिबात, है। और इसके लिए शेख अली ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कि उन्होंने कहा कि एक लड़की आई थी उनके पास, और उसने ये कहा था, एंड यू नो द रीजन व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू इज बिकॉज दिस इज फॉर अस टू लर्न। किसी का एग्जाम्पल देख के सबसे पहले अपने अंदर झांके कि क्या ऐसी चीजें मैं तो नहीं करती, मेरा जहन मुझे इस तरीके से तो नहीं बरगलाता है व्हेन आई एम ट्राइंग टू वॉक ऑन द राइट पाथ, है ना। तो इसमें यहाँ पे देखिए, वो, हाँ, वो लड़की आई शेख हिली के पास, एंड शी सेज कि ओ शेख, I've given up on my hijab, I don't do hijab anymore। मैं हिजाब नहीं करती अब, मैं पहले करती थी, अब मैंने बंद कर दिया। और फिर उसका रीजन देती है, क्या कहती है कि शेख, मैंने ये रियलाइज किया कि मैं जो हिजाब करती थी, आई wasn't really doing it for Allah। मैं तो अपने मम्मा पापा के डर से करती थी, मैं जिस प्रॉब्लली वो जिस जगह रहती थी, जिस सोसाइटी में रहती थी, वहां ज्यादातर लोग हिजाब करते थे। सो शी सेड आई वाज डूइंग दिस अंडर प्रेशर ऑफ माय पेरेंट्स एंड माय सोसाइटी, एंड अल्लाह के लिए अगर आप काम नहीं करते तो अल्लाह इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट एनीवेज।
क्योंकि अल्लाह वही चीज एक्सेप्ट करता है जो आपने अल्लाह के लिए की, कुर्बत के लिए की है. सो आई स्टॉप्ड डूइंग हिजाब. And that's why I gave it, because I felt like I'm a hypocrite, and मैं अल्लाह के लिए तो कर ही नहीं रही हूँ, and अल्लाह तो एक्सेप्ट करेगा भी नहीं, तो what's the point? कितना अमेजिंग एक्सक्यूज शैतान ने उसे दिया है ना. तो ये जो चीजें होती हैं ये हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है. देखिए, एक चीज विच वी नीड टू रिमेम्बर, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि यस, आपकी नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी नीयत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स, कि भाई जितनी आप खुलूस से नीयत के साथ एक छोटा सा भी काम करते हैं तो अल्लाह उसे कबूल करता है. वो काम देखने में छोटा होगा, लेकिन आप जब अपने नामे अमाल में देखेंगे, वो इतने सारे सवाब मिल गए इतनी सी काम करने के लिए. तो वो काम की वजह से नहीं, इट्स नॉट द साइज और द स्मॉल थिंग दैट यू डिड, इट्स हाउ ब्यूटिफुली, कितने खुलूस से आपने वो काम किया, जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको इतना बड़ा बना के आपके सामने रख दिया है ना. तो यस, आपके इंटेंशन, आपकी नीयत इज मोस्ट इम्पोर्टेंट जब आप कोई काम करते हैं फॉर कुर्बतन इल्लल्लाह. लेकिन देखिए, नीयत को प्योरीफाई करना, मैं आपको बताऊं, इट्स प्रोबेबली द हार्डेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. And believe you me, I'm struggling with it myself. कि जब मैं सोचती हूँ कि ओके, आई हैव डन समथिंग, बड़ा अंदर से अच्छी फील होता है कि आज मैंने इतनी देर दुआ पढ़ ली, या मैंने ये अच्छा काम कर लिया. फिर उसके बाद जब मैं उसको एनालाइज करती हूँ कि इसमें कितने काम मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ इसलिए की थी ताकि मेरा ये काम हो जाए, ये काम, ये प्योरिटी तो एक्चुअली नहीं हुई ना. मतलब when you do something for Allah, if you get something as a blessing, that should be the side effect. But essentially, आपकी दुआ, आपकी इबादत should be only कि Allah, I want you to smile. And that's why I'm doing this. I want you to be happy. I want your loved ones to be happy with me. अगर उसमें मुझे कोई benefit मिल जाता है, मेरी कोई परेशानी आसान हो जाती है, that should be the side effect. लेकिन हम तो पहले उसी के लिए दुआ करते हैं ना, अल्लाह मैं मेरी ये परेशानी है दूर कर दे. There's no harm in praying. लेकिन when I'm talking about khulus, that's a very different thing, है ना? When you're doing it only for Allah, and anything you get is a मतलब like perk, but that's not the reason why you're doing. तो आप ये जो चीज होती है ना, नियत, purity of niyat, khulus of niyat, and purifying your niyat, कि how do I know कि मैं कुर्बत के लिए कर रही हूँ, या कुर्बत and for me, है ना. तो बहरहाल, what I'm trying to say is कि this is a lifelong process. शैतान आपसे, जैसे उस बच्ची से, बेचारी बच्ची, अल्लाह मियाँ उसको हेल्प करते, शैतान ने उसको कैसे कहा, oh you're not doing this for Allah anyways, you're doing it because of your mommy daddy and your चाचा मामा काका. तो फिर कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अल्लाह does not accept things which are not done for him. हाँ, लेकिन वाजिबात में अल्लाह ने कहा कि मुझे पता है, हो सकता है कि तुम पूरी जिंदगी, maybe hijab is something that I am doing because Allah asks me to do it, and I hate it for the rest of my life. I don't have to like things which Allah, मतलब कि हो सकता है कि मैं पूरी जिंदगी, मुझे कोई एक चीज पसंद ना आए. फजर की नमाज, कमान, फजर की नमाज, अल्लाह मियाँ, फजर की जगह आप क्यों नहीं कह सकते कि जब तुम आंख खोलो, अपना सुबह उठो, तब तुम नमाज पढ़ लो. कोई 10 बजे उठता है, कोई 9 बजे, कोई 8 बजे, भाई कोई 6 बजे भी उठता है. नहीं, अल्लाह ने कहा नहीं, सब सूरज निकलने से पहले उठेंगे, नो मैटर व्हाट, है ना. तो कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके वाजिबात होते हैं, जो आपको पसंद नहीं आते हैं, लेकिन अल्लाह ने इनको नॉन नेगोशिएबल, नॉन मतलब आपको ऑप्शन नहीं दिया है कि हम रोजा रखें कि ना रखें, इसका ऑप्शन हमारे पास नहीं है. हाँ, आप बीमार हैं, वो सब चीजें नहीं बात करें. जनरली यू हेल्दी, यू आर नाइस, रमजान का महीना आ रहा है, मेरा मूड नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें आप वाजिबात के साथ नहीं कर सकते. मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्यों नमाज पढ़ूं. आपकी समझ हो सकता है कि आप 50 इयर्स 60 इयर्स होके आपको समझ आ गए, लेकिन दैट डजंट मीन कि 9 साल की उम्र से 50 तक आप वेट करते रहे, मेरी समझ आएगी एक दिन, तब मैं नमाज पढ़ूंगा. व्हेन आई गेट दिस, व्हेन आई फील इट, नहीं, वाजिबात के लिए ये सारी चीजें हट जाती हैं. आप अपनी जिंदगी में समझ पाए, आप ना समझ पाए, यस, आपका ऑब्वियसली जितना आप एक सेंटेंस की भी, अगर आप नमाज में अपना एक सेंटेंस भी समझ के पढ़ते हैं, तो उसका दर्जा आगे हो जाता है. ऑफ कोर्स, लेकिन डू वी हैव एन ऑप्शन फॉर नॉट डूइंग थिंग्स जस्ट बिकॉज दे डोंट मेक सेंस टू अस?
those things which are considered wajib, हमारे जो हलाल हराम इसमें आ जाते हैं. Do we have an option? No, we don't have an option. We have to do it, whether we like it, we don't, whether we understand, we don't. Wajib means wajib, क्योंकि इसमें आपका इतना protection है. This is like the basic, जैसे कहते नहीं है कि आपके बॉडी में इतनी कैल्शियम होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो ब्रेक करने लगेगा. अगर आपके बॉडी के अंदर इतना ब्लड नहीं है तो यू विल बिकम एनीमिक, यू कैन डाई. अगर आपके ऑक्सीजन, जैसे कोविड में ना एक इतने लेवल तक आप स्ट्रगल कर रहे थे, अगर उससे भी लो चली जाएगी ऑक्सीजन, देन यू विल डाई. तो ये जो डूज एंड डोंट्स अगर हम इस तरीके से समझ लें कि फॉर आवर स्पिरिचुअल हेल्थ, दीज थिंग्स दैट अल्लाह हैज चॉक्ड आउट फॉर अस, दीज आर नॉन नेगोशिएबल. कि इफ यू डोंट डू दिस, हमें नहीं पता लेकिन हमारी सोल के हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, दिस इज लाइक अ डेथ सेंटेंस. इस वजह से हमारे लिए ऑप्शंस नहीं अल्लाह ने रखे कि देखो तुम्हारी समझ हो ना हो, मुझे नहीं पता कि तुम किस माहौल में हो, तुम्हें कितना एनलाइटनमेंट हो, तुम किस तरीके का टेम्परामेंट रखते हो, जस्ट टेक इट फ्रॉम मी, आई एम योर क्रिएटर, यू गॉट टू डू दिस थिंग्स. ठीक है. तो यहाँ पे यही चीज बात की जा रही थी कि यहाँ पे शैतान ने उस बच्ची की सिंसेरिटी को क्वेश्चन में डाल के उससे एक वाजिब एक्ट हटा दिया. Moment for us to reflect. Do we think like this? Do we give ourselves options when it comes to wajib things? If we are doing this, then that means कि हमारी रूह is affected. हमारी रूह में कमजोरी आ रही है. Watch out. ठीक है. आयत नंबर 14 में अल्लाह कहता है कि अगर ये जो एनिमी, जो तुम लोग इतने सारे आके एक्सक्यूजेस दे रहे हो प्रॉफिट को कि हम इस वजह से नहीं लड़ सकते, हमारी फैमिलीज वहां पे अकेली हैं, गतफान आर गोइंग टू कम. अब अल्लाह कहता है, यू नो व्हाट, अगर तुम अपने घर पे जो तुम कह रहे हो कि आई एम गोइंग टू डिफेंड माय हाउस, आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट माय वाइफ एंड माय फैमिली एंड माय किड्स, तुम अगर घर पे भी जाओगे और अगर तुम्हारे ऊपर मान लो कि ये अटैक होता भी, दैट पीपल वुड कम स्टॉर्मिंग इन, you would not fight them. You would ask them. जरा सा वो कहते हैं अच्छा ठीक है. देखिए अगर आप ये सोचें, who are the people who are coming to fight? They are इन्हीं लोगों के relatives, इन्हीं लोगों के family, इन्हीं लोगों के मक्का में ये neighbor हुआ करते थे. कोई उनके चाचा है तो मामा है, कोई friends है, कोई, you know, it's like not some Roman people are coming to attack, some unknown people are coming to attack. इन्हीं लोगों को, इन्हीं की फैमिली, इन्हीं के फ्रेंड्स, इन्हीं की कम्युनिटी वाले जो नहीं चाहते थे कि ये लोग मुसलमान हो, वो लोग एक ग्रुप बना के इनको अटैक कर रहे हैं. Their own people were coming to fight them, right? तो ये कह रहे हैं कि ये लोग जब आएंगे, वो लोग कहेंगे कि देखो हमारा तुमसे तो कोई पंगा है नहीं, तो तुम छोड़ दो इस्लाम, we won't touch you. तुम फौरन अपना फेथ को you'll put it in the bin. So this is what, and ayat number 14 अल्लाह कहता है, you know, अगर ये लोग अटैक करने आए भी तुम्हारे घर पे, तुम जो एक्सक्यूज कह रहे हो कि आई विल फाइट फ्रॉम माय हाउस, यू विल नॉट फाइट. यू विल जरा सा तुम चींचू करके यू विल गिव अप एंड यू विल से कि नहीं भाई हम तुम्हारे साथ हैं, बल्कि यू विल कम एंड अटैक अदर पीपल. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेम्बर. How many of us are Muslims only till the time everything is happening that's going according to us? मतलब कि only in the happy times. And जहाँ जरा सा pressure हमारे ऊपर होता है, जहाँ जरा सी हमें difficulty महसूस होती है, how many of us start looking for excuses to get out? Maybe we don't need to do this much. Maybe we can only do this much. Maybe we don't need to do this. Maybe this is too hard for us. How many of us, first sign of trouble, first sign of hardship, हम लोग में से कितने लोग हैं जो हम लोग अपने लिए कॉम्प्रोमाइजेस ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस्लाम को बैक सीट में रख देते हैं. दिस इज फॉर अस टू वॉच आउट. देखिए इस आयत में, आयत नंबर 14 में, द वर्ड दैट इज यूज्ड इज फितना. फितना इन अरबिक, उर्दू फितना इज डिफरेंट. उर्दू में हम लोग जैसे कि somebody who's a troublemaker, ये तो बड़ा फितना क्रिएट करती है या करता है ना, तो वो वाला फितना उर्दू वाला फितना होता है. अरबिक में फितना के मतलब क्या होता है? फितना के मतलब होता है ट्रायल्स, ट्रिब्यूलेशंस. आपका इम्तिहान लिया जाए, उसको अल्लाह कहता है फितना. And this word has actually come in the Quran more than 60 times.
तो अल्लाह जब जब कुरान में आप वर्ड फितना देखते हैं ना, so that means Allah is testing you. एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइम डिफरेंट डिफरेंट पीपल के एग्जाम्पल्स अल्लाह हमारे सामने देता है। देखो इनको हमने यूं टेस्ट किया, इनको हमने यूं टेस्ट किया। तो यहाँ पे जो टेस्ट हो रहा है वो किस चीज का टेस्ट हो रहा था? वो टेस्ट हो रहा था हमारे आई मीन नॉट हमारे, उन लोगों के ईमान का टेस्ट हो रहा था। आर यू गोइंग टू स्टे ए मुस्लिम, या तुम शिर्क में मुब्तला हो जाओगे? आर यू गोइंग टू स्टैंड अप अगेंस्ट पॉलीथियज्म? क्या तुम शिर्क के खिलाफ खड़े हो सकते हो? ये इनका टेस्ट था। तो यहाँ पे तकैये की भी बात होती है, जैसे कि कभी आप जब ये पढ़े तो आप कहें अरे इनके ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा था, अगर ये लोग अपनी बीवी और बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जाना चाहते थे, आप यू आर बीइंग अटैक्ड एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, हमारे यहाँ इन द शिया स्कूल ऑफ थॉट यू आर इवन अलाउड, एक्चुअली आई डोंट नो कि अहले सुन्नत में तकैया है कि नहीं है। बहरहाल एनीवेज, हम लोग के लिए यह है कि आपकी अगर जान खतरे में है, आपकी फैमिली की, कम्युनिटी की, तो आप अपना फेथ हाइड कर सकते हैं फॉर दैट टाइम, सो दैट यू आर नॉट परसिक्यूटेड। तो यहाँ पे ततैये वाले की बात नहीं हो रही है। These people are not saying that we're going to conceal our faith to save our lives that way. ये वो लोग थे, जैसे remember that उनके अंसार, उन्हीं लोगों का हेड जो थे वो आके कहते हैं कि these are liars, ये हर बार इसी तरीके की चीज करते हैं। Whenever there is a fight, they will just hide. इन्हें कोई हार्ड वर्क नहीं करना, इन्हें कोई मुश्किल नहीं बेयर करना, इन्हें कोई हार्डशिप नहीं बेयर करना, लेकिन when it will come you get the prize, they will be the first in the line to try and get the prize. तो ये हमें देखना चाहिए कि how often we give up without even trying. हम किसी चीज को पढ़ते हैं, कोई रूल के बारे में, कोई चीज, we don't even give it a try and we say oh my god this is going to be so difficult and we can't do it. और बगैर ट्राई, बगैर कोशिश किए we just decide for ourselves कि ये हमारे लिए नहीं है. How many times we do these things? Moment for us to reflect. Ayat number 15. एक मिनट, ये हमने शुरू किया है I think. 1 second. Just give me 1 minute. I'm actually, ये मैं रिकॉर्डिंग खुद कर रही हूँ तो I lost track of my time. Okay, we have half an hour. All right. ठीक है, सॉरी, आज का एक तो टाइम भी हमारा थोड़ा सा ऑफ हो गया था, तो आई वाज थिंकिंग कि माय टाइम इज अप, वी हैव हाफ एन आवर राइट नाउ। अच्छा, कमिंग बैक टू आयत नंबर 15। आयत नंबर 15 में अल्लाह कहता है कि तुमने तो, ही इज टॉकिंग अबाउट प्रॉमिसेस, कुछ कसम ली थी तुमने, तुमने कुछ मुझसे वादा किया था। कॉवेनेंट के मतलब होता है आप किसी से जैसे नहीं कसम लेते हैं, यू टेक एन ओथ, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई मुफस्सिर हैं कि मतलब जब अल्लाह कहता है कि तुमने तो मुझसे कस्में दी थी, तुमने मेरे साथ वादे किए थे, एंड नाउ यू आर गोइंग बैक, तो व्हेन यू डू द तफसीर यू विल कम टू नो दैट देयर आर पीपल, कई मुफस्सिर हैं जो कहते हैं कि ये वो कस्में थी जो कि ओहद की लड़ाई के बाद पीपल, यू नो द पीपल हु लेफ्ट द बैटल ऑफ ओहद, यू कैन गूगल इट, ओहद की लड़ाई के बाद देयर वर पीपल, जैसे कि ओहद वाज अ लड़ाई जिसमें मुसलमान इनिशियली जीत गए थे। Rasulullah had given a certain set of instructions and he said no matter what happens, तुम लोग यहाँ पे रहोगे, तुम लोग ये करोगे, तुम लोग वो करोगे। उनके इंस्ट्रक्शंस जब तक फॉलो किए जा रहे थे, द मुस्लिम्स वन द वॉर, जितने कुरैश थे वो भाग गए। लेकिन देन द पीपल, देयर आर सर्टेन पीपल जहां से रसूलुल्लाह ने कहा था कि डू नॉट लीव दिस प्लेस नो मैटर व्हाट, उन्होंने अपनी पोजीशन हटा, मतलब वो वहां से चले गए। दे वेंट टू यू नो गेट द बूटीज ऑफ वॉर जिसे कहते नहीं है, वो माल गनीमत के पीछे भाग गए, और ये जो
एनिमीज जिनको भगा दिया था, उन्होंने देखा एवरीबडी इज डिस्ट्रैक्टेड, फिर से अटैक होता है एंड देन द मुस्लिम्स गेट किल्ड एंड दे लूज द वॉर। तो ये एक जीती हुई वॉर को, बिकॉज दे डिड नॉट फॉलो प्रॉफिट्स इंस्ट्रक्शंस, दे लॉस्ट इट। तो जो लोग भाग गए थे या जिनकी वजह से दे लॉस्ट द वॉर, दीज पीपल दे बिलोंग टू अ सर्टेन ट्राइब, क्या नाम था, बनी हारिसा का ट्राइब था। एंड उन्होंने रसूल अल्लाह से एक बाके ना मतलब शर्मिंदगी का इजहार किया, and they said like, we're so sorry, we messed up, and we promised we're never going to run from the field. And guess what, come the battle of Ahzab, these are the very same people who are looking for excuses to run away. ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये उन लोगों के बारे में था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बदर की लड़ाई के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने प्रोमिसेस किए, बट नाउ दीज पीपल वांट टू रेनिगेट, कि ये अपना वादा तोड़ रहे हैं कि जब हमारे पर अटैक होगा वी विल नेवर डिजर्ट, इस्लाम के ऊपर अगर हमला हुआ तो हम अपनी जानें हाजिर एंड ऑल दैट, तो दे आर गोइंग बैक। किसी ने कहा कि नो, दीज आर द पीपल जिन्होंने मतलब कि ये व्हेन डिड दे गिव दिस ओथ ऑफ एलिजेंस कि हम हमेशा सपोर्ट करेंगे इस्लाम को और रसूलुल्लाह आपको, एंड वी आर विद यू, एंड जैसे आपने देखा है ना कि जब जज्बात में तो हम लोग कितने नारे लगाते हैं, ओ माय गॉड, लेकिन जब काम करने की बात आती है, हाउ मेनी ऑफ अस आर एबल टू डू दैट। तो ये अकबा में, दैट इज बिफोर देयर वाज अ प्लेस इन मक्का 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मक्का, जहां पे रसूलुल्लाह की बात सुनने के लिए मदीना से जो तिजारती लोग आते थे, दिस इज आई एम टॉकिंग बिफोर रसूलुल्लाह शिफ्टेड टू मदीना। मदीने के लोग मक्के जाते थे, वहां से रसूलुल्लाह से अच्छी अच्छी बातें करते थे, उनकी बातों से इतने इम्प्रेस थे, दे एक्चुअली गेव देयर अलीजेंस ओवर देयर कि वी हैव बिकम मुस्लिम्स, हम मदीने में जाके अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को इस ब्यूटीफुल रिलीजन के बारे में बताएंगे एंड वी विल प्रोपेगेट इस्लाम। तो ये एक उन्होंने पैक्ट किया था। अब दीज पीपल, तो मतलब कहते हैं कि पीपल फ्रॉम बदर या पीपल फ्रॉम ओहद या अकबा में जिन लोगों ने रसूलुल्लाह के साथ ये प्रोमिसेस किए थे, तो पीपल से कि दीज आर दोज पीपल हु आर बैकिंग ऑफ। हाँ, अच्छा, तो एक्चुअली अगर आप प्रिंसिपल देखें, आप जब कहते हैं कि आई एम अ मुस्लिम, आई एम पार्ट ऑफ इस्लाम, मुस्लिम के मतलब ही होता है क्या कि आप मेरी मर्जी में नहीं फॉलो कर रही। Islam means submission to the will of Allah. Submission means that I'm going to obey what this maker of mine is telling me. मेरा रब मुझसे जो कहता है, now he is the boss. I follow him. आप अपने विल, अपनी जो एक आपका पैरामीटर है कि अब ये मैं इसमें आ गई हूं ना, तो अब इसके बाहर मुझे नहीं निकलना है। हम सब ने, when we say, when we call ourselves Muslims, we have all made a pact with Allah. हमने अल्लाह के साथ एक बैत की है। हमने अपने अइम्मा मासूमीन को अपना वर्ड दिया है कि we follow you, है ना। तो ये जो चीज है, ये कुरान बहुत सीरियसली लेता है कि तुमने मेरे साथ एक बैत की थी, you made a promise, you made a deal with me, you said that you're going to follow me, you said you're going to defend my cause, and now look what you're doing, है ना। तो यहाँ पे अच्छा, एक चीज आप लोग को मैं समझाऊं, बड़ी मजे की थी ये। क्या था कि why so much of emphasis, अल्लाह ये बैत या ये covenant का नाम क्यों इस्तेमाल करता है कि तुमने मुझे एक अपना, you made a promise to me। अल्लाह ये कसम वादे की क्यों बात करता है? क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें कि जो the Arab culture at that time, age of Jahiliya, मतलब before the advent of Islam, Islam जब वहां पे नहीं पहुंचा था, उससे पहले अरबियों का क्या कल्चर था। आपने ये देखिए, जैसे अगर फॉर दैट मैटर अगर हम अपनी इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो जैसे हम लोग वी हियर दिस, ये आप ड्रामों में एंड मूवीज में जो जो हिस्टोरिकल मूवीज होती हैं, उसमें आप नहीं देखते हैं एक राजपूत ने अगर अपनी जबान दे दी, या जैसे हम लोग कहते हैं पठान की जबान, एक बार उसने कह दिया सो कह दिया, तो अब वो अपनी जान तो दे देगा, लेकिन ही विल नेवर ब्रेक ए प्रॉमिस। अगर उसने कुछ कह दिया कि हम ये करेंगे या नहीं करेंगे, या कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, जबान से नहीं, जो जो कहते नहीं हमने आपको एक अपनी जबान दे दी, उसकी बड़ी वैल्यू होती थी। कोई छोटी सी चीज के लिए भी अगर कोई कहता था कि नो, नाउ आई हैव, मैंने जबान दे दी कि तुम्हारा मैं जैसे मान लीजिए, मेरे कहाँ से जहन में आ रहा है
पुराने ज़माने में ये होता था कि इफ यू अगर जैसे किसी को कोई अटैक कर रहा है और वो किसी के घर के अंदर जाके छुप जाए, मैं भागूँ अपने नेबर के पास, तो अब वो नेबर जो है, अब उसकी इज़्ज़त की बात हो जाएगी कि उसके घर से कोई घसीट के मुझे नहीं ले जा सकता, एंड टू डिफेंड मी ही विल गिव हिज लाइफ। ये वो उस ज़माने का कल्चर था। आपकी एक अपनी ज़बान देना, इसकी एक बहुत वेट होता था। वो इंसान अपनी इज़्ज़त मतलब लाइक माय रिस्पेक्ट इज़ एट स्टेक नाउ इफ आई डोंट डू व्हाट आई सेड आई वुड डू। है ना? तो इसलिए अल्लाह जो है कहता है कि तुम इतने छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि तुम इस कल्चर से आते हो जहाँ पे तुमने कहा कि मैंने एक बार अपना ज़बान दे दी तो देन दैट इज़ इट। और इतना तुमने जो व्हाट अबाउट दैट प्रॉमिस दैट यू मेड टू मी? तो देखिए अल्लाह किस तरीके से साइकोलॉजिकली ही इज टॉकिंग टू दीज पीपल, हे you come from a culture where you make these promises and you keep them for the smallest of things. What about the promises that you made to the prophet? What about the promises that you made to me? समझ रहे हैं? तो इस वजह से ये बात आती थी कि ये इज्जत की बात है ना तुम्हारी, तुम तो इसको अपनी इज्जत, अपनी एक आबरू की बात समझते थे कि अरे पठान का वर्ड, दैट काइंड ऑफ थिंग इवन अरब्स यूज्ड टू डू। तो वेयर इज योर गैरत, वेयर इज योर इज्जत? हाउ आर यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ द promises that you made with me and my prophet? ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज जो होती है, जो हमारे लिए, जो हम लोग सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ इज वेरी हार्ड, जैसे हम लोग वी आर द वंस कि भाई इस्लाम को फॉलो करना कितना टफ है। अब आप एक एग्जांपल के तौर पे देखें, अभी अभी माशाल्लाह शबान है, देन रजब, देन रजब तक वेंट, देन रमजान विल कम, एंड देन थोड़े टाइम के बाद कम समर, सारी दुनिया हॉलीडेज में जा रही है, एंजॉय कर रही है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम मतलब हमारे बच्चे जैसे जब आके कहते हैं ना कि मम्मा माय सो एंड सो फ्रेंड वो हवाई जा रहा है, वो इटली जा रहा है, वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, एंड मम्मा व्हाट आर वी डूइंग? बेटा हम लोग मजलिस जा रहे हैं, क्योंकि मुहर्रम जो है वो आ रहा है इन द समर मंथ्स, है ना? तो ये हमें कितना हार्ड लगता है, ओ माय गॉड पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है, कोई बीच जा रहा है, कोई ये कर रहा है, यहाँ पे तो समर्स में मतलब बिल्कुल ना, मतलब सब बाहर होते हैं, एंड ऑल आउटडोर एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग, पिकनिक पिकनिक। हम लोग जो है मुहर्रम जाते हैं, मजलिसें जाते हैं, प्रोसेशन से आते हैं, ये वाली चीजें कर रहे होते हैं। तो वी फील कि हमारी लाइफ कितनी हार्ड है, हम कितने हार्ड चॉइसेस करते हैं। वेल, लेट मी शेयर एन इंसिडेंट, एंड ये आप लोग अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो आप नाम लिख लें, बिकॉज ये बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। when they give you a hard time कि mama it's so hard to follow Islam, you should talk about people like Mus'ab ibn Umair. ये एक लड़का था, ये शेख हिली ने, सॉरी, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ही शेयर्ड फ्रॉम आवर हिस्ट्री। मुसअब इब्न उमैर यूज्ड टू बी अ बॉय जो कि एक बहुत ही एफ्लुएंट, बहुत ही अमीर खानदान से आता था, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी। इनका क्या काम था उस जमाने में? दे वर परफ्यूम मर्चेंट्स, मतलब लाइक अ परफ्यूम शॉप थी उनकी, परफ्यूम का बिजनेस था। तो परफ्यूम उस जमाने में आप ऐसे सोचिए जैसे कि आजकल के जमाने में द वे यू सेल गोल्ड या डायमंड मर्चेंट्स नहीं होते, दे वेरी एफ्लुएंट कम्युनिटी, दे रिच पीपल। उस जमाने में परफ्यूम वाज लाइक गोल्ड, तो ये परफ्यूम बेचते थे, इनका बहुत बड़ा सेटअप था, एंड ही केम फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, एंड ही एक्सेप्टेड इस्लाम। इनके अब्बा इनसे बहुत नाराज थे, ही डिड नॉट वांट हिम टू बिकम अ मुस्लिम। लेकिन ये जो है ही हर्ट, मतलब वही चीज थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इसने बातें सुनी, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, तो ही रियलाइज्ड कि दिस इज द ट्रू रिलीजन, एंड ही कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो इनकी जो हम लोग को हिस्ट्री में मिलता है कि ही हैड अ ब्यूटीफुल वॉइस, and he had a beautiful जैसे कि अल्लाह, he was God gifted है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों की बात, ऐसे तो कितने सारे स्पीकर्स होते हैं ना, बहुत सी आप लोग मजलिस सुनते होंगे, बहुत से आप लोग लेक्चर सुनते होंगे, लेकिन not every person is able to reach your heart
होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि आप उन्हें जानते भी नहीं, लेकिन जब वो बात करना शुरू करते हैं तो आप देखें एकदम से सन्नाटा हो जाता है, एंड एवरीबडी इज लिसनिंग, तो दे हैव दैट इफेक्ट। तो दिस इज समथिंग दैट इज गिफ्टेड बाय अल्लाह। तो ये इनकी क़िरात बहुत खूबसूरत थी, ये बहुत जबरदस्त ओरेटर थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव्स हिम अ टास्क, ही सेज पुट दिस टू यूज। तो ये जो है लड़का, ये मदीना जाता है, और मदीने में थ्रू दिस ब्यूटीफुल रेसिटेशन ऑफ द कुरान दैट ही कुड डू एंड द ब्यूटीफुल ओरेशन, ओरेटरी पावर, इसने सोचे कि रसूल अल्लाह के आने से पहले ही ऑलरेडी स्टार्टेड टू वर्क ऑन द पीपल, like telling them कि this is such a beautiful religion, amazing religion, and people were really really enamored. वो इसकी बात अल्लाह ने उसके, जैसे नहीं कहते हैं कि कुछ लोगों, they're blessed with the way they speak and they can touch hearts. तो ये वो काम करता था वहां पे मदीने में, and so many people actually, उनके दिल ना इस्लाम की तरफ सॉफ्ट हो गए, they accepted Islam and बहुत अच्छे अच्छे इसने काम किए। अब क्या हो रहा है, he actually, unfortunately, he was also killed in the Battle of Badr. And ये इतना अच्छा इंसान था, इतना मतलब कि he was so dear to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इसकी जो कब्र है वो उन्होंने हजरत हमजा, जो रसूल अल्लाह के अंकल थे, उनकी कब्र के साइड में you will find the कब्र of Musab ibn Umair. अच्छा, why am I telling you all this? Because now comes, जो हम लोग सोचते हैं ना कि our thing is hard. देखिए, ये जो लड़ाइयाँ होती थी, चाहे आप बदर देखें, चाहे आप खंदक, खैबर, ओहद, जो भी ये लड़ाइयाँ होती थी मदीने में, these people are there, and then there would be a group of Quraysh who would come and attack them, and then these people would fight back, then again they would come and then again attack. तो ये चीजें चलती रही for 7, 8, 10 years, है ना। तो ये कौन आते थे? The people who would come, as I said, they कोई बाहर वाले नहीं थे. This is not like Mongols coming or Chinese or I don't know, Russian of that time. No, this is their own family people who would come and fight. तो imagine कि Battle of Badr में क्या हुआ, इसी का सगा भाई, ये जो मुसब इब्न उमैर हैं, इनके सगे भाई थे अबू अजीज. He actually came to fight his own real brother. आप ये देखिए हेट्रेड कितनी आ गई थी दिल में। आपका भाई मुसलमान हुआ है, वो आपसे कुछ ले रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपका शहर छोड़ के चला गया है। Why can you not just leave them? No, those people they came charging. तो कितनी मर्तबा ऐसा होता था कि यहाँ से मदीने से जो इंसान, एक father has to ends up fighting or being attacked by his own son or his own brother or his own nephew. या एक भाई दूसरे भाई से लड़ाई कर रहा है because they have come to attack. You think our life is difficult because we don't get to enjoy life enough, because we've got to dress up in a certain way, because हम खाना एक तरीके का खाते हैं, या हमें सच बोलना पड़ जाता है, या हम गीबत नहीं करें, हमें लाइफ कितनी हार्ड लगती है। Look at these people. ये लड़का, he has to fight with Abu Aziz, who is his own सगा भाई। एंड देखिए, एक इम्तिहान, हम लोग सोचते हैं हमारा और आपका इम्तिहान हो रहा है ना, ये इम्तिहान देखें, बदर में हिज ब्रदर गॉट कॉट एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और लोगों ने, जो मुसलमान थे, उसको पकड़ के लेकर आते हैं और कहते हैं, इस लड़के के पास आते हैं ना कि ये तो तुम्हारा भाई है, व्हाट डू यू वांट अस टू डू विद हिम। तो इमेजिन कि एक सगा भाई सगे भाई के सामने आता है, एंड दिस ब्रदर सेज कि देखो, ही केम टू फाइट अस, so you do whatever you're doing with the rest of the people, don't make any concessions just because he's my brother. You think that was easy? That probably was amongst the hardest things that he did. तो ये जो चीजें होती है ना, these are things that we need to remember, कि जब हम लोग अपने आप को डिफिकल्टी में महसूस करते हैं, या हम लोग सोचते हैं what we have to do if we have to go to a restaurant and ask, excuse me, is this halal or not, we think that's hard. अपने बच्चों के साथ ऐसे एग्जाम्पल्स शेयर करें आप, ठीक है। अच्छा, anyways,
और जितनी चीजें याद रखें कि जितनी चीजें अल्लाह जो है, जो इतना हम लोगों को अपने प्रोमिसेस के बारे में याद दिला रहा है, एंड इतनी चीजें हमें बताता है कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, तुमने हमसे एक प्रॉमिस किया था। जो कुछ भी अल्लाह के लिए हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारी नमाज, हमारे रोजे, हमारा ऑल ऑफ दोस डूज एंड डोंट्स, इनमें से किसी चीज का अल्लाह के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अल्लाह डजंट रिक्वायर माय नमाज, अल्लाह डजंट रिक्वायर माय रोजा। ये जो भी चीजें अल्लाह हमसे कहता है, I'm not giving you an option, you got to do this, actually are like the oxygen and the level of blood and the level of calcium which is required for my own health. हम अल्लाह के लिए कोई फेवर नहीं कर रहे होते। रोजा रख के हम अपनी रूहानियत को इंक्रीज करते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाते हैं। नमाज पढ़ के हम अपने आप को बचा रहे होते हैं, अल्लाह के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। तो ये चीजें याद रखना चाहिए when we start to whine and complain to Allah, why, ya Allah, why? It's for us. ठीक है? Um, 11:13. Okay, let me try. अब जहां तक हो सकेगा another 10-15 minutes and then we will wind up inshallah, because I number 16 and 17 they kind of go together. मैं जल्दी से ये करने की कोशिश करती हूँ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ayat number 17. Say, who is he that shall defend you from Allah? ये बहुत very very same, उसी से related, कि तुम ये लड़ाई नहीं करते हो, तुम अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो उसी से रिलेशन में आगे ये वाली आयतें आती हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Say, who is he that shall defend you from Allah if he desires punishment for you or desires mercy for you? And they shall find for themselves apart from Allah neither a protector nor a helper. तो यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आयत 16 नहीं पढ़ी, मैं ये 17 पढ़ने लगी थी, सॉरी। आयत 16 है, से flight will not avail you should you flee from death or from being killed, and then you will be led to enjoy only for a little while. And then it is say, kaho, who is he that shall defend you from Allah if he desires a punishment for you or he desires mercy for you? And they shall find for themselves apart from Allah neither a protector nor a helper. तो यहाँ पे essentially अल्लाह ये कह रहा है आयत नंबर 16 and आयत नंबर 17 में, पहले तो अल्लाह ये कहता है कि देखो तुम क्या कह रहे हो, you're making excuses, you don't want to fight. Why? Essentially because you think that by not fighting तुम अपने घर में अगर छुप जाओगे तो तुम बच जाओगे, तुम जिंदा रहोगे, तुम अपनी जान बचाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हो। तो अल्लाह ये कहता है कि अगर मान लो कि तुमने लड़ाई नहीं की, ठीक है, आज मतलब थोड़े दिन के बाद ये लड़ाई, ये पीपल आर गोना कम एंड यू थिंक दैट बाय हाइडिंग इनसाइड योर हाउस यू आर गोइंग टू बी सेफ। तो अल्लाह ये कहता है कि तुम्हारे साथ दो चीजें होंगी। एक ये कि अगर तुम्हारा आज आखिरी दिन, अगर अल्लाह ने जैसे तुम्हारी तकदीर में लिख दिया कि भाई नरगिस रिजवी इज गोइंग टू डाई टुडे, हाँ, अब मैं बैटलफील्ड में हूं तो भी आई एम गोइंग टू डाई। अगर मैं अपने घर में अपने बिस्तर के नीचे छुप गई और मेरा उस दिन डेथ का डे है, अल्लाह said this is the last day of Narjis Rizvi on planet Earth, so I am going to die no matter where I am, चाहे मैं बैटलफील्ड में हूँ, चाहे मैं घर के अंदर छुप के बैठी हूँ। अगर मेरे वक्त मौत का वक्त आ गया सो आ गया। तो अल्लाह कहता है कि तुम जिस मौत से भाग के अपने घर में छुपने की कोशिश कर रहे हो, थिंकिंग दैट यू विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ लाइफ, अगर मैंने लिख दिया है दैट यू गोना डाई टुडे, सो यू हैव टू चॉइसेस। इफ यू डाई आउटसाइड इन द बैटलफील्ड, मौत तो तुम्हारी वहां पे आनी थी, तो लेकिन यू विल डाई द डेथ ऑफ अ मार्टर, यू विल डाई द डेथ ऑफ अ हीरो, एक शहीद का तुम्हें दर्जा मिलेगा। अगर तुम यहाँ पे छुप के मरे तो तुम्हें क्या होगा, तुम पूरी जिंदगी, तुमने जो गलत काम किया, कि तुमने अल्लाह के साथ जो प्रोमिसेस किए थे, तुमने प्रॉफिट के साथ जो तुमने प्रोमिसेस किए थे, उसकी तुम्हें अजाब भी मिलेगा और मौत तो तुम्हें वहां पे भी आएगी अपने लिहाफ के अंदर। बट यू विल डाई द डेथ ऑफ ए कावर्ड, है ना। तो उसमें इन्होंने ये कहा कि अल्लाह जब कोई चीज डिसाइड कर लेता है, जिंदगी और मौत का डिसीजन इज इन द हैंड्स ऑफ हु,
the one who gave you life, he decides कि किस दिन आपका आखिरी दिन होना है, और जिस दिन उसने लिख दिया, सो आप कहीं भी होंगे, आप जो भी काम कर रहे होंगे, अगर आपको मौत, मलकुल मौत को भेज दिया, तो that's it, you have to go with him, you don't have like a choice, right? तो यहाँ पे एक और आयत which is there as part of तफसीर, ये ओहद से जो लोग भागे थे, remember ओहद में भी ये हरकत की गई थी, तो हिपोक्रेट्स जो ओहद में जिन्होंने सब प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी ओहद की वॉर के लिए, तो उसमें उनके लिए सूरह आले इमरान में आयत नंबर 154, सूरह 3 आयत 154 में अल्लाह क्या कहता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, even if you were in your own homes, those for whom slaughter was ordained would certainly have gone forth to their death beds. कि अगर तुम्हारे लिए, तुम सोच रहे हो कि तुम लड़ाई नहीं करोगे तो हम जान बच जाएगी, तुम्हारे घर में आके तुमको मौत लेके चली जाएगी, अगर तुम्हारा कत्ल से लिखा हुआ है कि यू गोना डाई, तो दैट बैटलफील्ड में जिस कत्ल से तुम मरते, हीरो की डेथ होती, वही लोग आके तुम्हारे घर के अंदर तुमको मारेंगे और तुम्हें एक बुजदिल की मौत पे मरोगे। ठीक है, तो इसमें अच्छा, एक चीज जो हम लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह जब कहता है, कई बार आपने, हमने, सबने सुना है कि अल्लाह ये कहता है कि कभी कभी बलाएं टलती है ना, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप सदकात देते हैं, या आप नमाज शब पढ़ते हैं, या आप कतर रजा नहीं करते, कतर रजा व्हाट, इट्स व्हेन यू डोंट ब्रेक योर ties with your family, with your blood relatives especially, आप अपने रिश्तेदारों के साथ अपने अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा रखते हैं, आप उनको काट नहीं देते, नो मैटर व्हाट दे हैव डन, है ना? तो इन सब ऐसे तरीके से गिविंग चैरिटी, डूइंग सदका, इससे क्या होता है, इससे आपकी जिंदगी तुलानी होती है, अल्लाह आपकी जिंदगी लंबी करता है। तो क्या मतलब, यहाँ पे अल्लाह कहता है कि मौत अगर मैंने लिख दी तो लिख दी, तुम तो इधर भी मरोगे उधर भी मरोगे, अब यहाँ पे अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी जिंदगी तुलानी करता हूँ। तो कभी कभी हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि व्हाट डज दिस मीन। तो शेख हिल्ली एक्सप्लेन्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर, वो ये कहते हैं कि आप ऐसे सोचिए जैसे कि हर इंसान की ना दो टाइप ऑफ डेथ्स होती हैं, या दो टाइम ऑफ डेथ्स होती हैं। एक होता है जैसे जिसको कहते हैं, अल्लाह क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि तुम 100 साल तक जिंदा रहोगे, ठीक है, तो उसके मतलब क्या हो गया कि आप 100 के आगे आप 101 साल नहीं होंगे, दिस इज इट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जो इंसान जिसको 100 साल तक अल्लाह ने जिंदगी दी थी, वो लेट्स से 70 पे उसकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से मे बी ही डिडंट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, मे बी उसने ये जो मैंने आपको बताया अपने रिश्तेदारों से उसने गड़बड़ काम किए, मे बी उसने अपनी लाइफ जिस तरीके से अल्लाह ने लीड करने के लिए कहा था कि ही कैन रीच अप टू 100 years, he did not qualify and hence he died at 70। ठीक है, तो ये जो चीज होती है, ये चीज हमें याद रखना चाहिए कि जब हम लोग जो सोचते हैं कि सदका करने से, तो समझिए जैसे कि लेट्स से मे बी यू वर सपोज टू बी डाइंग एट 40 एट 30, लेकिन आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपकी जिंदगी और आगे आ गई, फिर आपने कोई और अच्छा काम किया, जिंदगी और आगे आ गई। या आपको डाई होना था लेट्स से 80 इयर्स के ऊपर, आपने कोई बुरा काम किया, आप 50 पे खत्म हो गए, आपकी मौत आने वाली थी, फॉर एग्जाम्पल जो जो शिफ्टेबल मौत होती है, समझिए 40 पे आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने किसी की हेल्प इतनी की, अल्लाह को वो काम आपका इतना पसंद आ गया, अल्लाह ने वो बीमारी से आपको निकाल दिया, आपको उस अजाब से, आपको उस एक्सीडेंट से बचा लिया, एंड देन अल्टीमेटली यू डिड गेट टू लिव टू दैट 80 or 100 years that Allah decided, but beyond that there is nothing। तो ये लोगों से अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी अगर वो आ गया ना, अगर मैंने लिख दिया है तुम्हारे बुक में कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तो तुम डजंट मैटर कि तुम बाहर हो, घर में हो, ऊपर हो, नीचे हो, यू विल डाई। सो what do you think you're saving? और अगर तुम जो हो जाके अपने घर में छुपते हो और मैंने आज तुम्हारी मौत का दिन नहीं लिखा था, तो अब तुम सोचो कि तुम्हारी क्या जिंदगी हुई। अब तुम you will live, but you would be living even if you had gone to the battlefield, तुम वापस जिंदा आते क्योंकि आज तुम्हारा मौत मैंने नहीं लिखी थी। लेकिन अगर तुम बैटलफील्ड से वापस आते और जिंदा आते, तो सोचो कि you would be called a hero।
तुम्हारी कितनी इज्जत होती, तुम्हारी कितनी तारीफें लोग करते हैं ना, यू वुड बी अ हीरो। तुम्हारा ईमान कहाँ से कहाँ पहुंच चुका होता। अब यही जिंदगी तुमने जो कम्बल के अंदर छुप के, बाय नॉट डूइंग द राइट थिंग, बाय नॉट फॉलोइंग व्हाट यू वर सपोज्ड टू डू, तुम्हें जिंदगी वही मिली। लेकिन अब तुम जो हो, तुम एक बुजदिल कहलाए जाओगे, तुम कावर्ड कहलाए जाओगे। तुम्हें लोगों को भी फेस करना पड़ेगा जो तुम्हारे ऊपर थूकेंगे कि तुम कितने बुजदिल थे, तुमने कितना गलत काम किया। और तुमने जो मेरे साथ, जो तुमने मुझे एक प्रॉमिस किया था दैट आई एम अ मुस्लिम, आई हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अल्लाह की तरफ से जो तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट आएगा वो भी है। तो ये जो चीजें हैं ना, दिस इज समथिंग दैट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अल्लाह ने ये जो परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं, अल्लामा तबातबाई लिखते हैं वेरी ब्यूटिफुली, ही राइट्स, ही सेज कि देखिए, एक चीज होती है परेशानियां जब हमारे ऊपर आती हैं तो वो दो रीजन से आती हैं। 99% ऑफ द टाइम जो परेशानी, एनी, इट कुड बी आपकी जॉब नहीं, आपकी सेहत नहीं, घर में कोई ज़हनी सुकून नहीं है, कुछ भी, जो भी आप जिस चीज को परेशानी समझे, है ना। तो ज्यादातर 99% ऑफ द टाइम ये परेशानी हमारे ऊपर आती है, इट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। हमने कोई गलत काम किया होता है जिसके नतीजे में वो चीज हमारे ऊपर होती है, राइट। 1% चांस, एक भी नहीं, मैं तो कहूँ हमारे और आपके लिए 0.1% चांस होता है जहां पे हम कहते हैं कि अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। हम उस लेवल पे आ गए जहां पे अल्लाह हमारा इम्तिहान ले। वैस्ट मेजोरिटी ऑफ अस, हमारा इम्तिहान, हम उस लेवल पे नहीं आते, हम ही गड़बड़ करते हैं, हम उस गड़बड़ का हमें, लेकिन इट्स कमिंग बैक ऑन अस। ठीक है। तो ईदर वेज, अदर, ईदर कि हमारे ऊपर परेशानी आई बिकॉज वी डिड समथिंग रॉन्ग, या अल्लाह हमसे कोई चीज का इम्तिहान ले रहा है कि अब तुम इस लेवल पे पहुंच गए हो, एंड आई एम गोना पुश यू अ लिटिल बिट फर्दर, एंड आई थिंक यू कैन गो टू लेवल 2। आपको एक एग्जाम देके फिर आप दूसरे क्लास में जा रहे हैं, फिर वहां पे ओके यू मास्टर्ड दिस लेवल, नाउ आई पुश यू अ लिटिल बिट फर्दर, है ना, जैसे जो हमारे एम मासूमीन के साथ होता था। तो जो भी हो रहा है, मान लीजिए कि आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं और आपने अपने, देखें, इस्तिग़फ़ार आप करें, हाँ, कि या अल्लाह, इफ दिस इज इन्फ्लिक्टेड बिकॉज, मुझे माफ कर दे परवरदिगार, मैंने ही कोई चीज गलत की होगी। आप माफी भी मांग रहे हैं, आप अपने आप को चेक भी कर रहे हैं, इफ इट इज हेल्थ रिलेटेड, आर यू टेकिंग योर मेडिसिन, यू गोइंग टू द डॉक्टर्स, यू डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल। आपने अपना, अगर जो भी एज अ ह्यूमन बीइंग आप उस परेशानी से निकलने के लिए आ, कर सकते थे, आपने वो सारी चीजें कर दी। दुआ भी कर रहे हैं आप, उन सब चीजों के बावजूद मान लीजिए कि आपकी तबीयत नहीं सही हो रही, या आपकी जॉब नहीं मिल रही, या दैट प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग अवे, तो इसमें wouldn't it be better if you trusted Allah कि परवरदिगार, जो कुछ मैं कर सकती थी मैंने कर लिया, और मैं, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, इसके बावजूद इफ माई प्रॉब्लम इज नॉट बीइंग सॉर्टेड, then this is the time to show trust in Allah. That means परवरदिगार, maybe you want me to go through this because इसमें मेरी बेहतरी है, there is some growth, कोई मसलहत है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, these are the best times for you to totally and totally trust Allah. How do you show your trust in Allah? By constantly going on doing what you were expected to do. ये नहीं कि oh, life is so hard, I cannot do it, I'm moving out of it. मैं डिप्रेशन में चली गई, मैंने जो चीज, फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई बहुत डिफिकल्ट चीज लगी, मैंने गीबत करना शुरू कर दी, मैंने मतलब आई वाज ट्राइंग टू लेस, जैसे कि मैं जॉब कर रही हूँ और जॉब में लोगों ने मुझसे कुछ गलत काम करने के लिए कहा, या चीट करके कोई चीज करने के लिए, या झूठ बोल करके, या कोई जैसे बहुत सी चीजें होती हैं, वेयर आप सही काम करके आप नहीं देख रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट हुई, तो आपने गलत काम करना शुरू कर दिया टू टेक केयर ऑफ दैट प्रॉब्लम, राइट। तो ये जो चीज, मतलब कि पैसे नहीं थे मेरे पास तो मैंने जाके चोरी करके पैसे लेकर आ गया कि मुझे पैसे चाहिए थे, अब चाहे सही या गलत, नहीं। अल्लाह के ऊपर ईमान रखना, अल्लाह के ऊपर मजबूती से ट्रस्ट दिखाने का मतलब होता है कि इवन इन स्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू माइट बी कमिंग, आप गलत काम ना करें, आप हराम काम ना करें। दिस इज हाउ यू शो योर ट्रस्ट एंड योर फेथ इन अल्लाह की, या अल्लाह, मेरे बहुत तकलीफ है इस वक्त, लेकिन
मैं अपने तौर से जो कुछ कर सकती थी मैंने किया, उसके बावजूद मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है, तो आई नो कि यू आर लेटिंग दिस हैपन बिकॉज़ इसमें मेरे लिए कोई चीज़ बेहतर है। How do I show this trust in Allah? By constantly keep on doing the right thing. ठीक है? अम, हाँ, और यही चीज़ जो हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं कि सो मेनी टाइम्स जब हम अपने अल्लाह पे भरोसा नहीं करते हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर लुकिंग हियर एंड देयर फॉर रॉन्ग ऑप्शंस टू टेक केयर ऑफ दैट प्रॉब्लम दैट वी माइट हैव। इट कुड बी करियर, इट कुड बी कि अरे मैं अगर जो मेरी सोसाइटी है, मुझे उसमें फिट इन होना है, जो इट गर्ल्स हैं, मुझे इतने लाइक्स चाहिए, तो मुझे इस तरीके से कपड़े पहनने पड़ेंगे। मुझे इस तरीके से सोशलाइज़ करना पड़ेगा। अरे! मैं अगर हर वक़्त सच्ची बात बोलूँ और लोगों की लाइफ़ में मिर्च मसाला लगा के गॉसिप में ना इंडल्ज करूँ, पीपल कॉल मी बोरिंग, पीपल कॉल मी मतलब कि मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं किसी पार्टी में जाती हूँ तो सब लोग कहते हैं, ओह! आ गई उम, ब बाबी आ गई, जैसे बाबा का वो नहीं होता है, संत बाबा, एक भाभी आ गई तुम्हारे, तुम कितनी बोरिंग होगी, तुम तो हमेशा यू नेवर टॉक बैड, यू डोंट टॉक अबाउट गॉसिप एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एंड यू डोंट ड्रेस अप लाइक दिस एंड दैट। तो हम वो प्रेशर में आके फिर हम लोग वो चीजें करने लगते हैं जस्ट सो दैट वी हैव अ सेंस ऑफ कि ओ आई ऑल्सो बिलोंग टू दिस ग्रुप, आई बिलोंग टू दिस सोसाइटी, आई फिट इन, पीपल लाइक मी। देखिए, मोहब्बत और जो ट्रू मोहब्बत होती है, आप अगर देखें अपने कम्युनिटी में देखें, आप वो सेलिब्रिटीज़ जिनको देख के हमारे बेचारे बच्चे एंड आई शुडन्ट से बच्चे, ऑल ऑफ अस आल्सो हम लोग कितने मरूब हो जाते हैं। हम जब बॉलीवुड में न्यूज़ देखते हैं, हॉलीवुड देखते हैं, हम जब फोर्ब्स मैगज़ीन, द मोस्ट फेमस पीपल एंड इतने रिच एंड ये सब इन लोगों को देखें, लेकिन यही लोग जो लोग इनके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, इतने टिकटॉक पे हैं, इतने इस पे हैं, उस पे हैं, जब इनके ऊपर हार्ड टाइम आता है, यही सेलिब्रिटीज़ जिनके ऊपर कभी कोई केस हो जाता है या जेल चले जाते हैं, हाउ मेनी पीपल फॉलो देम? इतने बुरी तरीके से मैं तो यहाँ पे देखती हूँ ना कि हॉलीवुड में एक ज़माने में आप टॉप स्टार थे, उसके बाद पता चला कि आफ्टर फ्यू इयर्स कोई किसी ड्रग उसमें पता चला, मतलब बिलीव यू मी इवन द पिक्चर्स जो भेजते हैं, इतना बुरा उनका हशर होता है कि आप पहचान नहीं सकते ये उस ज़माने का हार्ट थ्रॉब था, उस ज़माने की ये डीवा थी और अब ये इनका ये हाल हो गया। कहाँ गए वो लाइक्स? कहाँ गई वो मोहब्बतें? Where are the people? Where is that fame? Where is that fortune? जिसके पीछे आपने अपने ज़मीर को ख़त्म कर दिया to fit in, to belong to that culture. देखिए ये चीज़ we have to know and ये चीज़ आप अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर डाल दें। इज़्ज़त और मोहब्बत ये अल्लाह का डिपार्टमेंट है। When he creates a space in somebody's heart for you, आपको उसके दिल से कोई निकाल नहीं सकता। अगर अल्लाह आपके दिल में किसी की मोहब्बत डाल दे या आपकी मोहब्बत किसी के दिल में डाल दे, वो कोई और निकाल नहीं सकता। That's the safest place. अल्लाह is the one. अल्लाह जिसको इज्जत दे, उसकी इज्जत कोई नहीं ले सकता। और अल्लाह जब किसी के साथ अपनी रहमत हटा दे और वो बेइज्जत हो जाए, तो फिर उसको दुनिया मिल के उसको इज्जत नहीं दिला सकती। सो इज्जत का डिपार्टमेंट, मोहब्बत का डिपार्टमेंट, लाइक्स का डिपार्टमेंट, पॉपुलैरिटी का डिपार्टमेंट, इट ऑल इज अल्लाह's। आप मांगे तो आप राइट सोर्स से मांगे। अपने मॉरल्स, अपने प्रिंसिपल्स, अपने ज़मीर को कॉम्प्रोमाइज करके हम एक सोशल लाइफ बिल्ड करते हैं हम अपने बारे में, तो दीज आर ऑल डिसेप्शंस। इसमें कोई रियलिटी नहीं होती। तो दीज़ आर अगेन आयत नंबर 17 में जो अल्लाह ये कहता है कि तुम जिस चीज़ से भाग रहे थे, ये सोच के कि तुम ये नहीं करोगे, तुम बच जाओगे। इफ मौत इज़ सपोज्ड टू कम, तो तुम्हारे पास चॉइस ये थी कि यहाँ पे तुम हीरो की मौत मरते और यहाँ पे तुम बिल्कुल विलेन की मौत मर रहे हो। तुम्हें एक शर्मिंदगी की और अज़ाब तो तुम्हारे ऊपर अलग है ना? तो यही अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट करना, अल्लाह के ऊपर फ़ेथ करना कि अल्लाह कहता है कि मैं अगर किसी की तरफ खैर भेजूँ, तो कोई नहीं रोक सकता और मैं अगर किसी को पनिश करना चाहूँ, तो तुम नहीं उसको टाल सकोगे। सो बेस्ट क्या है? हार्ड टाइम्स में डोंट लेट योर फेथ गो, हार्ड टाइम्स में
keep on trusting Allah. How do we show our trust to Allah? By constantly doing that which is most difficult, and keep doing it and keep asking Allah. And maybe उस बीमारी में, उस तंगी में, उस ज़हनी परेशानी में भी आपके लिए अल्लाह ने कोई बहुत बड़ी खैर रखी है ना? तो ये with this we will end आयत नंबर 17 से इंशाल्लाह, नहीं हमने 17 कर लिया था, आयत नंबर 18 ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह हम लोग अगले हफ्ते शुरू करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शाबान में बाय द वे मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें है एक रोजा रखने का क्या सवाब, 2 3 4 वो सब मैं भूल गई हूँ, लेकिन 7 अगर आपने इस महीने में 7 रोजे आपने रख लिए तो अल्लाह कहता है कि अब आई विल प्रोटेक्ट दिस पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। शैतान के वसवास, शैतान की जो पूरी पार्टी है पूरी, उनसे आप अल्लाह के स्पेशल प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। अल्लाह कहता है कि अब फॉर योर लाइफ आई विल बी प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम दीज वसवास। तो अपने लिए भी दुआ करिए कि आप एटलीस्ट 7 रोजे रख लें। मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं 7 रोजे रख लूं इंशाल्लाह। आई नीड दैट प्रोटेक्शन, आई थिंक वी ऑल डू। चले ठीक है, फिर टेक केयर एंड आई होप यू हैव एन ऑसम एंड अमेजिंग वीक एंड स्पिरिचुअल जिमिंग करते रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करके रखें एंड एब्जॉर्ब नूर एंड स्प्रेड द नूर अराउंड। इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलो, खुदा हाफिज।